Okay, dear students, today's topic is electric polarization. Now today we are going to talk about the capacitor when we place a dielectric between the two plates. So capacitor consists of two plates. When they are connected to the positive and negative terminal of a battery, then we say that positive charge will reside on one capacitor and negative charge will reside on the other capacitor. Now we say that this voltage V is directly proportional to charge Q. I mean, if V is more, then more charge will reside on this capacitor. So V is directly proportional to Q. We know this fact. Now we say that if I introduce some dielectric material over here, dielectric material means that if I introduce insulating material, so if we introduce insulating material, then this insulating material will have positive and negative charge. And for example, if I say that these are my plates of the capacitor, and if I introduce these dielectric, actually dielectric are those insulators which have positive and negative poles, which can split its charges into positive and negative sides. So we say they are dielectric, and those insulators which cannot be separated into positive and negative pole, they are insulators but they are not dielectric. For example, wood that cannot be their molecules cannot be separated into positive and negative charges, so we say that it's not a dielectric. But we say those material like water, so water have a positive and they have positive and negative poles, because we say that whenever you apply magnetic field, then in the presence of that magnetic field, these positive and negative charges will move from one side to another side. For example, if this is a molecule of the dielectric, then positive and negative charges before applying the electric field, they will overlap with each other. But when I apply this electric field, I mean electric field कहाँ से आएगा? जब आपके पास यहाँ पे वोल्टेज को हम कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हम वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, then we say applying इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सारा रिजाइड करेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस साइड पे इसको रिपेल करेंगे. इसी तरह यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा. तो जितने भी हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल होंगे उनके पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे चले जाएंगे, नेगेटिव दूसरे पे चले जाएंगे. यहाँ पर इसके जो नेगेटिव है दूसरे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये नेगेटिव की तरफ. एज अ रिज़ल्ट हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये क्या हो गया है? ये पोलराइज्ड हो गया है. दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज नॉन एज, आयंस का मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे से जुदा तो नहीं होते, लेकिन ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन सच अ वे दैट we say that all positive charges will be on one side and negative charges will be on the other side, and this is known as electric polarization. And now in this case we say that this material has been polarized. अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आए हैं, ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं कि ये डायपोल है. डायपोल का मतलब है कि ये इसके दो पोल्स हैं, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज लाया कर रहा है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज लाया करता है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डायपोल की तरह, इसके जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला V इज इक्वल टू सी क्यू था, लेकिन अगर मैं डायपोल के लिए फार्मूला लिखूँगी देन आई से दैट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q
multiplied by d. What is q? Q is a charge and d is the distance between positive and negative charges. It is known as dipole. तो हर एक मॉलिक्यूल एक डायपोल होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये d है और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो मेरे पास q है. So we say that each molecule will be behave like a dipole, right? Now due to this splitting of charges or arrangement of charges, we say कि सारा पॉजिटिव चार्ज आपके पास इधर है, इसकी वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन अब सारा नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ चला गया है, पॉजिटिव इधर हो गया है, यहाँ नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इस तरफ आ गया. सो इन चार्जेस की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा and that electric field will be opposite to the electric. ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा. इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये अपोज करेगा इस फील्ड को एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स विल बी रिड्यूस्ड. तो अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिड्यूस हो गया है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ज़्यादा चार्ज यहाँ पे रिजाइड होना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि मेरे पास पहले तो वही था, अब यहाँ पर आपके पास मज़ीद चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे. देयरफॉर वी से दैट व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनटू the capacitor in the middle of the two plates of the capacitor, when we introduce dielectric material, so as a result of these dielectric material we say the capacitance of the capacitor increases because ये जो मेरे पास यहाँ पर relationship है इसमें मैं कहती हूँ that C is equal to V by Q. तो अगर आपके पास potential difference इंक्रीज हो रहा है तो C आपके पास इंक्रीज होगा और अगर आपके पास Q इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास अगर Q आपके पास इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक इट्स दिस इज Q is equal to CV and I must have C is equal to Q by V. This is Q by V. So C is equal to Q by V. Therefore अगर मेरे पास Q इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और अगर V इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा. अच्छा, यहाँ पर जब मैंने ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है तो यहाँ पर आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये इसकी मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो गया है. जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज़ होगा. इट मीन्स दैट मोर चार्जेस कैन बी नाउ रिजाइड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो दैट्स व्हाई वी से कि जब आपके पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मटेरियल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि डायपोल मोमेंट जो है वो अब जो डायपोल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो रिड्यूस करेगा जो ओरिजिनली आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान फील्ड था. अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया है, सो वी नो that potential difference हमारे पास relationship है that E is equal to V divided by D. अगर आपके पास ये E ज़्यादा होगा तो potential difference B ज़्यादा होगा और अगर आपके पास E कम होगा तो potential difference B कम होगा, right? So इस यहाँ पे जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाता है उसकी वजह से आपके पास यहाँ दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी ड्रॉप हो जाता है और उसके ड्रॉप होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज होगा. मतलब ये है कि यहाँ पे अब मैं और मज़ीद चार्जेस को एकोमोडेट कर सकती हूँ. ठीक है. सो दिस फिनोमेना इज़ नॉन एज पोलराइजेशन कि जिसमें आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर्स के बीच में रखते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है. अ फिनोमेना इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं
वो आपके पास जो मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट बने हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, they have their positive and negative charges separately slightly, causing the molecule to be oriented slightly in the electric field of the charge capacitor. As electric field due to induced charges is opposite to the external electric field, so it reduces the intensity of external field due to oppositely charged plates of the capacitor. So ये जो मेरे पास molecule होंगे, they will be polarized molecule, and because of these polarized molecule, capacitance of the capacitor will increase. Now this is all about polarization. और P को हमने कहा है कि we can represent it by Q multiplied by D, and the system in which two charges of equal magnitude but of opposite sign separated by the distance d are present is termed as a dipole. ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, which are separated, these two charges are separated by small distance d, तो हम कहेंगे कि ये जो एक मॉलिक्यूल था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, now they will act like a dipole, and the process of this splitting of charges and making of dipole, converting my molecules in a dipole, is known as, this phenomena is known as polarization. Okay, thank you. This is all about polarization.